Hello everyone, this is Katie here, and in this video I'm going to explain you the story from your textbook, The Coming of the King. इस वीडियो में मैं आपको द कमिंग ऑफ द किंग कहानी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, सो ध्यानपूर्वक समझे या देखें. सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड and attentively watch it. Happy digital learning. Have a good day. So children, I'm going to read out this story for you and explain you both in English and in Hindi. I will read out the story from your textbook as it is in your textbook. So now I'm reading out this story and explaining to you. Now read this story to know how a few children clean their playground to welcome a king. Generally what happens, children are careless and very indisciplined creatures. They don't listen to anyone, and because they are so small, they only know how to play. And they don't listen to anyone. And about the cleanliness, generally the mother or the elder brother and sisters do. But they don't do. Generally, you must be also doing at home. When after school, when you go to home, what you do, you throw your bags on the bed, you throw your shoes in one place, you open up your school dress and throw it, and directly you ask, "Mommy, give me food, I'm hungry." And you don't keep your belongings, your books, copies, even toys in the correct place. After using them, you leave them like that. Right? Generally बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही लापरवाह होते हैं और उनका बच्चा दिल साफ सफाई, सभी चीज़ें घर में सही से रखना, ये उन लोगों के आदत में नहीं होता है, जिसके वजह से जो चीज़ जैसी बिखरे पड़ी हुई है वो लोग वैसे ही छोड़ देते हैं. बच्चों में ये आदत होता है. आप भी स्कूल से जाकर अपने घर पर यही करते होंगे. एक जगह बैग फेंक देते होंगे, एक जगह अपने जूता को खोलकर कहीं अपने कपड़े को उतार कर और मम्मी को बोलते होंगे कि मम्मी भूख लगी है, खाना दो. राइट? दिस जनरली हैपेंस विद चिल्ड्रन. So here also in this story, I'm going to tell you a story of such children who are careless, but just to welcome the king, what they have done to clean the playground, we are going to see it. तो इस कहानी में भी हम लोग कुछ ऐसे बच्चों को देखेंगे जो लापरवाह हैं, जो केयरलेस हैं, जो अपने प्लेग्राउंड को साफ नहीं रखते हैं. पर एक दिन उसे पता चलता है कि वहां से राजा जी गुजरने वाले हैं, और ये बात सुनकर बच्चे सोचते हैं कि अगर राजा जी हमारे बगीचे में आ गए या इस प्लेग्राउंड को देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा यहाँ की गंदगी देखकर. तो उस प्लेग्राउंड को, उस खेल के मैदान को साफ करने के लिए बच्चे क्या क्या करते हैं, हम इस कहानी में देखने वाले हैं. So, keep on watching the video from beginning to end. शुरू से अंत तक इस वीडियो को अच्छी तरह देखते रहिए. First of all, I'm going to read out the whole story for you and explain. मैं पूरी कहानी को
रीड करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा. सो पे अटेंशन and hear the story attentively and watch the video. Some children were playing in their playground one day when a herald rode through the town blowing a trumpet and crying aloud, the king passes by this road today, make ready for the king. कुछ बच्चे प्लेग्राउंड में यानी अपने खेल के मैदान में, अपने बागीचे में, पार्क में खेल रहे थे एक दिन. तो वहीं से एक हेरल्ड आए. हेरल्ड का मतलब है एन ऑफिशियल, वो कैरीज एंड अनाउंस इंपॉर्टेंट न्यूज. जब भी कोई राजा जी या कोई राजा गुजरते हैं तो उसके पहले एक इंसान आता है और कहता है कि सावधान, राजा जी पधार रहे हैं, राजा जी आने वाले हैं. वो इंसान जो ऐसा कहता है उसे हेरल्ड कहते हैं. तो एक दिन बच्चे अपने गार्डन में, प्लेग्राउंड में खेलते रहते हैं. उसी वक्त हेरल्ड आकर ये अनाउंस करता है, ये घोषणा करता है कि राजा जी उस इलाके से, उस रास्ते से कुछ ही देर में गुजरने वाले हैं. और ये सभी बच्चे अपना खेल रोककर सुनने लगते हैं. The children stopped playing and looked at one another. बच्चे अपना खेल रोक देते हैं और एक दूसरे के चेहरा देखने लगते हैं. Did you hear that? They said, the king is coming. He may look over the world and see our playground. Who knows? We must put it in order. तो बच्चे एक दूसरे के चेहरा देखकर कहने लगते हैं कि सुना तुम लोगों ने, राजा जी यहां से गुजरने वाले हैं. किसे पता, हो सकता है वो इस दीवार जो प्लेग्राउंड को ढके हुआ है, एक दीवार, उसे झांककर हमारे इस खेल के मैदान को भी देखे, या हमारे इस खेल के मैदान के अंदर आ जाए. और आकर क्या देखेंगे कि ये पूरा प्लेग्राउंड गंदा है, यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं. उन्हें अच्छा नहीं लगेगा. The playground was quite dirty, and in the corners were scraps of papers and broken toys, for these were careless children. उस बागीचे में, उस खेल के मैदान में कूड़े और ढेर लगे हुए थे. कहीं कूड़े, कहीं ढेर, जगह जगह पे थे. बहुत ही गंदा दिख रहा था वो खेल का मैदान. फटे हुए पेपर, टूटे खिलौने, गिरे हुए पत्ते, डालियां यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे. और उसी पे बच्चे खेल रहे थे. और वो प्लेग्राउंड, वो खेल का मैदान बहुत ही गंदा दिख रहा था. But now one brought a hoe and another a rack, and the third ran to fetch the wheelbarrow from behind the garden gate. They labored hard till at length all was clean and tidy. पर इन बच्चों ने सोचा, अगर राजा जी यहाँ से गुजरेंगे और उन्होंने हमारा खेल का मैदान, ये गार्डन देख लिया इसी गंदे तरीके से, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा. और हम लोग भी नहीं चाहते कि हमें राजा जी ऐसे हालत में देखें. तो यही सोचकर सभी बच्चे ये निश्चय करते हैं कि वे उस खेल के मैदान को साफ सुथरा करेंगे. और यही सोचकर एक लड़का हो ले आता है, HOE, हो का मतलब होता है कुदाल. दूसरा लड़का RAKE, रैक, एक रैक ले आता है. रैक का मतलब होता है जेली, जो एक बागीचे में घास को या किसी पौधे को मिट्टियों में से निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है. कोई वो लेकर आ जाता है.
एंड अ थर्ड रैन टू फैच द व्हील बैरो, और तीसरा लड़का जाता है ठेला, एक छोटा सा ठेला जिसमें एक चक्के सामने रहते हैं, वो पीछे बागीचे के गार्डन में रखा हुआ था, वो ठेला लेकर आ जाता है, क्योंकि वो लोग निश्चय करते हैं कि अब वो इस बागीचे को राजा जी के आने से पहले साफ करेंगे, और वो लोग अपने काम में लग जाते हैं। इट इज क्लीन नाउ दे सेड, और कुछ ही देर में सारे बच्चे उस गार्डन को जल्दी जल्दी, उस प्लेग्राउंड को, उस खेल के मैदान को जल्दी जल्दी साफ कर देते हैं राजा जी के आने से पहले, सभी बच्चे मिलकर। अब साफ करने के बाद वो लोग क्या कहते हैं? इट इज क्लीन नाउ दे सेड, बट वी मस्ट मेक इट प्रीटी टू, फॉर किंग्स आर यूज्ड टू फाइंड थिंग्स, maybe he would not notice mere cleanness, for he may have it all the time. तो बच्चों ने कहा, ये खेल का मैदान साफ तो हो गया, पर सिर्फ साफ सुथरा काफी नहीं, हमें इस मैदान को खूबसूरत भी बनाना होगा, सुंदर बनाना होगा, आकर्षक बनाना होगा, क्योंकि साफ सुथरा तो राजा जी अपने महल में भी रहते हैं, उन्हें साफ सुथरे की आदत है। तो साफ सुथरा सिर्फ काफी नहीं, हमें इस बागीचे को सुंदर बनाना भी चाहिए, जो दिखकर देखने वालों को अच्छा लगे। पर वक्त बहुत कम था और ये बच्चे थे, ये कर भी क्या सकते थे, पर उन लोगों में साहस और उम्मीद भरी हुई थी। वे चाहते थे कि राजा जी के सम्मान में वो इस बागीचे को सजाए, और जब राजा जी आए तो उनका भव्य स्वागत हो। तो यही सोचकर बच्चे कुछ और कोशिश करते हैं, देखते हैं वे लोग क्या करते हैं। Then one brought sweet rushes and strewed them on the ground. तो उनमें से एक एक मीठे फूल की पखरियों को लाता है, और उसकी पखरियों को, एक एक पखरियां को तोड़कर खुशबू फैलाने हेतु वो उस बागीचे में, उस प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में फेंकने लगता है। And others made garlands of oak leaves and pine tassels and hung them on the walls, and the littlest one pulled marigold buds and threw them all about the playground to look like gold, he said. और बाकी बच्चों ने मिलकर उस एक ओक के पत्तों से हार बनाया और पाइन के टैसल से माने गुच्छा बनाकर उसे दीवार पर टांग दिया। ये राजा जी के आव भगत में था, उनका भव्य स्वागत के लिए। और जो सबसे छोटा बच्चा था उसने मैरीगोल्ड बर्ड्स यानी कि गेंदा फूल की जो पत्तियां थी उसने बिखेर दी, एक एक पत्तियां निकाल निकाल के फूल से पूरे बगीचे में यानी कि पूरे खेल के मैदान में, ताकि वो और सुंदर और सुहाना और आकर्षक दिखे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे सोना, जैसे गोल्ड चारों तरफ फैले हुए हैं मैदान में। और उन बच्चों ने मिलकर उस बागीचे को बहुत सुंदर बना दिया। When all was done, the playground was so beautiful that the children stood and looked at it and clapped their hands with pleasure. जब पूरे के पूरे खेल का मैदान, जब वो बागीचा पूरा का पूरा साफ सुथरा हो गया, सफा हो गया, और उन लोगों ने उस बागीचे को अच्छे से सजा भी दिया, सुंदर दिखने लगे, तो सारे बच्चे एक कतार में खड़े होकर, एक टुक होकर उस सुंदर खेल के मैदान को देखने लगे। और उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि कुछ देर पहले जो बागीचा, जो खेल का मैदान जहाँ पर वे खेल रहे थे, इतना गंदा दिखता था और अब कितना सुंदर दिख रहा है। और उन लोगों ने शाबाशी खुद को एक दूसरे को देते हुए उन लोगों ने तालियां बजाई, तालियां बजाने लगे। अब देखते हैं आगे। Let us always keep it like this, said the little one, and others cried,
यस यस, दैट इज व्हाट वी डू। तो सबसे छोटे बच्चे ने कहा, कितना सुंदर ये मैदान दिख रहा है, अब हम लोग इस खेल के मैदान को, इस पार्क को हम लोग ऐसे ही सुंदर और ब्यूटीफुल रखेंगे। और उसका साथ देते हुए बाकी बच्चों ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अब हम सब मिलकर इस बागीचे को हमेशा साफ रखेंगे। Let us always keep it like this, said the littlest one, and the others cried, yes, yes, that is what we will do. They waited all day for the coming of the king, but he never came. Only towards sunset, a man with travel-worn clothes and a kind, tired face passed along the road and stood to look over the world. तो बच्चों ने उस बागीचे को साफ कर दिया, सजा दिया, आकर्षक बना दिया और राजा जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। उन लोगों ने बहुत इंतजार किया। शाम हो गई, सूरज डूबने को आया था, पर अब तक राजा जी नहीं आए थे। राजा जी तो नहीं आए, पर एक थका हुआ, बहुत ऐसा लगता था एक बहुत दूर से चलने वाला थका हुआ यात्री वहां पर आया और उसने बागीचे में झांका और रुक गया, रुक कर देखने लगा उस सुंदर से खेल के मैदान को। और वो इतना प्रभावित हुआ उस सुंदर खेल के मैदान को जो बच्चों लोगों ने तैयार किया था। इतने सुंदर मैदान को देखकर वो इतना आकर्षित हुआ कि वो रुक गया, देखता ही रहा। और फिर उसने कहा, What a pleasant place, said the man. May I come in and rest, dear children? वाह, कितना सुंदर बागीचा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ और थोड़ा आराम कर सकता हूँ बच्चों? उसने बच्चों से पूछा। The children brought him gladly and set him on the seat that they had made out of an old cask. They had covered it with the old red cloth. क्लॉक का मतलब होता है चादर जैसे, चद्दर जैसा रंगीन कपड़ा। क्लॉक, लाल कपड़े से उसने इस कास्ट को ढक दिया था। क्लॉक टू मेक इट लुक लाइक अ थ्रोन एंड इट मेड अ वेरी गुड वन। तो बच्चों ने उस खुशी से उस इंसान का, जो यात्री जो वहाँ आए थे, उसका स्वागत किया और उसे हाथ पकड़कर अंदर ले आए खुशी से। और जो बच्चों ने एक सिंहासन की तरह बनाया था राजा जी को बैठाने के लिए उनके स्वागत में, उस पर ही उन बच्चों ने उस इंसान को बैठा दिया। It is our playground, they said. We made it pretty for the king, but he did not come. And now we mean to keep it so for ourselves. बच्चों ने कहा उस इंसान से, उस यात्री से, कि राजा जी के आने के आगमन में हम लोगों ने इस बागीचे को, इस खेल के मैदान को सजाया था, साफ सुथरा किया था, पर राजा जी तो नहीं आए। पर अब हम लोगों ने निश्चय किया है कि अब हम लोग हमेशा से ही इस बागीचे को ऐसे ही सुंदर और साफ सुथरा रखेंगे। That is good, said the man. उस मनुष्य ने कहा, हाँ बहुत अच्छे सोच है। Because we think pretty and clean is nicer than ugly and dirty, said another. हमारे विचारों की तरह साफ और पवित्र ये बागान भी रहना चाहिए, दूसरे बच्चे ने कहा। That is better, said the man. बिल्कुल सही कहा। उस इंसान ने कहा, बिल्कुल सही कहा, ताकि कोई थका हुआ यात्री आकर मेरी तरह यहाँ विश्राम भी कर सकता है। And for the tired people to rest in, said the littlest one. छोटे बच्चे ने कहा, थके हुए लोग यहाँ पे आकर विश्राम भी कर सकते हैं। That is the best of all, said the man. हाँ, सही कहा, उस मनुष्य ने कहा। He sat and rested and looked at the children with such kind eyes that they came about him and told him all they knew about the 5 puppies in the barn and the thrush nest with 4 blue eggs and the shore where the gold shells grew, and the man nodded and understand all about it. बच्चे उस यात्री से इतने घुल मिल गए, उसकी दयामय आंखों से देखकर बच्चे उस मनुष्य से इतने घुल मिल गए कि उसने उस यात्री से बातें करना चालू कर दी। और बातों ही बातों में उसने कहा कि कुछ 5
कुत्ते के बच्चे हैं, पिल्ले हैं उस बागीचे के पीछे। कुछ ने कहा कि एक घोंसला भी है एक चिड़िया का जहाँ पर 4 नीले अंडे हैं। और इसी तरह सभी अपनी अपनी बातें बोलने लगे और वो मनुष्य, वो यात्री इन सभी बच्चों की बातें सुनकर मुस्कुराकर सर हिलाने लगा। By and by, he asked for a cup of water, and they brought it to him in the best cup with gold springs on it. यात्री को प्यास लगी, उसने बच्चों से मांगा क्या वो पानी पी सकता है। बच्चों ने तुरंत उसे एक कप पानी लाकर दिया, उसने पिया। Then he thanked the children and rose and went on his way. However, before he went, he laid his hand on their heads for a moment, and the touch went warm to their hearts. और फिर वो यात्री पानी पीकर उसे इतना अच्छा लगा, उसने खुशी से आशीर्वाद देते हुए सभी बच्चे के सर पे हाथ रखा और उसकी ये दयामयी और प्रेम पूर्वक हाथ बच्चों के माथा में तो थे पर उनके हृदय तक पहुंच गए। और उसके बाद बच्चों को आशीर्वाद देकर उसे धन्यवाद देकर वो यात्री चल पड़ा और बच्चे भी खुशी खुशी उसे देखते रहे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल स्टोरी एंड यू लाइक इट। आशा है आप सभी ने इस कहानी को भली भांति समझा होगा, पसंद आया होगा। सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी डिजिटल लर्निंग। Goodbye.